I couldn't see all of you from there, but here the scene looks absolutely amazing. So last few days when you're here in the campus, you've been hearing about love, care, thinking by heart, thinking by brain, all sorts of things which Sanjay sir has been telling you. And we'll go a little further in that. And hello. So we'll go a little further to that. And before I start my session, I would like to narrate one story which happened recently. I had been to a village, और वहाँ पे जाके मुझे बताया गया कि कुछ दो बच्चे थे जो कुछ दिन पहले ऐसी हरकत हुई उस गांव में, which was really very strange. Would you like to know the story? See, the incident was I had visited my native place. वहाँ पे कुछ घर में मैं गई मिलने पुराने रिश्तेदारों से, तो बताया कि दो बच्चे हैं, एक 6 साल का है और एक 10 साल का है. They are thick friends, बहुत अच्छे दोस्त हैं. और एक दिन वो लोग खेलते खेलते गांव से बहुत दूर निकल गए. एंड मौसम भी ख़राब हो गया. एंड जब तक शाम तक नहीं आए सारे घर वाले चिंतित. वहाँ पे जब बच्चे खेलने गए, दूर निकल गए, अचानक एक उसमें से जो बड़ा वाला बच्चा था वो कुएं में गिर जाता है. And there is nobody to help him. This young boy of 6 years, he's like frantic. He doesn't know what to do. वो इधर उधर देखता है कि कैसे इसको निकालूं मेरे दोस्त को बाहर. So he sees a bucket tied to a rope. He immediately puts it inside. फटाफट उसको डालता है and he tells his friend, please hold on to it. वो पकड़ता है बड़ा वाला बच्चा. 10 साल का बच्चा गिरा हुआ है अंदर और बाहर जो है वो 6 साल का बच्चा है. तो 6 साल का बच्चा अपनी पूरी जी जान से ताकत लगा देता है उसको पुल करने में. Can you imagine how difficult it must have been? A 6-year boy trying to save his friend who's 10 years old. And he just pulls him out fast और वो खींच खींच के बुरी तरह से पसीने से लथपथ होकर उसको निकाल लेता है eventually. And एक सांस लेते हैं गहरी की, थैंक गॉड वी आर सेफ नाउ. पर घर जाके बेटा पिटाई तो बहुत होने वाली है. They're going to ask, एक तो रात इतनी हो गई है, तुम थे कहाँ पे? Anyways, they come back home. Everybody is really delighted to see them. And they ask, what happened? So this young boy, he narrates the whole story. Nobody is ready to believe him. Nobody. सिर्फ ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, देर होगी, so they're just cooking up stories. But there was one very elderly, intelligent kind of a person. काका जी थे गाँव के, वो कहते हैं नहीं बच्चा सही कह रहा है. कहते हैं आपको कैसे लगता है, कैसे किया होगा इसने? अरे बता तो रहा है उसने कैसे निकाला उसको कुएं से बाहर, बाल्टी डाली, खींचा और निकाल लिया. बट माई क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ कुड ही डू इट? प्रोसीजर हमें पता है कि उसने कैसे किया, पर ऐसा वो क्यों कर पाया, ये क्वेश्चन है. एनीबडी कैन यू प्लीज गिव द माइक टू द ऑडियंस? Yeah. Very good. Very good. That's the perfect thing, So you need to understand that what is your energy level. Great. Maybe one chocolate can be given to her. Thank you so much. You helped me out. Pull down. और वो दूसरे कोई और नहीं होते. They could be our friends. They could be our relatives. They could be our classmates. Anybody. So what we need to understand is what is our capacity, what is our energy level. Let me share one fact with you. सन से जो एनर्जी आती है, आज सर कह रहे थे कि सन से बहुत एनर्जी आती है, रवीना को बोल रहे थे सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सन से आने वाली एनर्जी 2 मिनट्स में जितनी एनर्जी हमारे अर्थ पे आती है, इट इज़ मच मोर देन द एनुअल कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ऑफ द होल वर्ल्ड. सो यू कैन इमेजिन हाउ मच एनर्जी इज कमिंग डाउन. और अगर हम उसको कैप्चर करके यूटिलाइज कर सकें, सो वील नेवर हैव प्रॉब्लम्स ऑफ द पावर कट्स. Okay, so coming back to my topic, that boy was successful because he could understand what his powers are. He knew there was nobody to pull him down, so he knew that he could do it. Okay, so we need to understand ourself, और इसमें जानने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. ये सब कुछ साइंटिफिकली डिफाइन हो चुका है कि ऐसा करेंगे तो ऐसे होगा, और हमें सक्सेसफुल होने के लिए कुछ टूल्स चाहिए. So I am going to discuss the tools today with you. There are 4 primary emotions: mad, sad, glad and
scared. They are the 4 primary emotions which control ourselves. जो हमको कंट्रोल करने वाले हैं वो यही 4 प्राइमरी इमोशंस होते हैं और इसी से इंटेलिजेंस। आज सक्सेसफुल होने के लिए आपको इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए, बट नॉट ऑलवेज अ पर्सन हु इज अ टॉपर इन योर ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। उसका कारण ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो बनी हुई है दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एकेडमिक्स सर्टनली एक लेवल तक ज़रूरी है, लेकिन हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हाउ वी कंडक्ट आवर सेल्फ with our friends, with our relatives, with the society, that's important. Okay, so then that is the reason we need to pay attention to emotional intelligence. And this अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम इसको सीख भी सकते हैं. There are tools. You need to understand first of all इसके क्या components होते हैं और इसको हम कैसे improve कर सकते हैं. So emotional intelligence is all about self-awareness. Okay, you need to know what are my plus points, what are my negatives, so that you can work upon them. And you need to do self-analysis. Am I conducting myself well with my friends? Am I conducting myself well with my teachers, with my colleagues, with my relatives and everybody? Self-assessment is must. And अगर सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा, सेल्फ अवेयरनेस होगी, तो सेल्फ एम्पावरमेंट तो अपने आप ही हो जाएगा, isn't it? और ये सब करते हुए आपको हमेशा कंसिस्टेंटली, कल जो कृष्णा वाली बात बताई थी कि निरंतर अभ्यास करते रहना है, डिसिप्लिन्ड होते हुए. सो इट्स नॉट वन डेज जॉब दैट यू आर सेल्फ अवेयर टुडे, टुमारो इट्स फाइन, इफ आई एम नॉट सेल्फ अवेयर टुमारो चलेगा, ऐसा नहीं होगा. ये लाइफ का पार्ट होना पड़ेगा आपका. You have to be aware about yourself, you have to have to be really social, and आपको अपने आप को ढंग से मैनेज करना भी पड़ेगा. There are ways of doing it. You have to have good social awareness. आज आपकी फ्रेंड परेशान है, so हो सकता है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि यार मेरा तो लेक्चर मिस हो जाएगा, no I am not going to take care of her. That's not the way human beings behave. So ये सब चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी ज़िंदगी में. मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हट के आप बियॉन्ड सोच सके. एंड योर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स टुडे आर बिकॉज ऑफ दिस. हमारा रिलेशनशिप हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे पीयर्स के साथ, टीचर्स, हमारे रिलेटिव्स, उनके साथ कैसा है और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट? और किसी ने ठीक ही कहा है कि इफ़ यू नो योर इमोशंस, अगर मुझे पता है कि मेरे अंदर ये अच्छाई है, मैं उसको और अच्छा बना सकती हूँ. और अगर मुझे पता है कि मेरे इमोशनल प्रॉब्लम ये वाली है, देन आई कैन एक्चुअली हिट द प्रॉब्लम एंड करेक्ट इट. यू कैन टेम इट. आप उसको सुधार सकते हो, आप उसको ठीक कर सकते हो. तो सेल्फ अवेयरनेस की क्या क्या चीज़ें होती हैं? सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आर दैट यू आर सेल्फ अवेयर, यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. एक एंड understand the negative thought process that comes to your mind and try to just pause it there itself. आधी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? बिकॉज वो नेगेटिव थॉट से हम पूरी पिक्चर लिख देते हैं. एक बात शुरू होती है एंड पूरा स्क्रिप्ट हमारा तैयार हो जाता है. सो व्हाट इज द नीड? द नीड इज दैट वी कट शॉर्ट दैट. पहला थॉट जब आया उसको वहीं पे काट दें. द रीजन बीइंग इज आज आपकी फ्रेंड से कुछ अनबन हो गई और आपने उसके पीछे स्टोरी बना दी. You are passing on the negative vibrations to that person. She's automatically going to think negative only. आप उसको पॉजिटिव वे में सोचिए. अगर टीचर ने आपको डांट दिया और आपके अंदर वो कुछ नेगेटिविटी आई, आपने वो वाइब्स टीचर को दिए, वो इट्स गोइंग टू मल्टीप्लाई अगेन एंड अगेन. टीचर ने अगर आपको कुछ बोला है, इट कुड बी फॉर योर ओन बेनिफिट. टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, वो किसी से पार्शियलिटी नहीं करेंगी. तो आपको वो चीज को वहां समझ के उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिव थॉट को वही कट शॉर्ट करना है. सो दिस इज अबाउट बीइंग सेल्फ अवेयर एंड यू शुड ऑनर योर वर्ड्स. कई बार हम कहते हैं कि यार 8 o'clock आई एम गोइंग टू बी इन द कॉलेज, बारिश आ गई, लेट हो गई, आई नहीं, और फॉर दैट मैटर एनी अदर रीजन. सो यू ऑलवेज रिमेंबर यू मस्ट ऑनर योर वर्ड्स. अगर आप अपने वर्ड्स या अपने प्रॉमिसेस पूरे करेंगे, ओनली देन योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. नेक्स्ट टाइम दे वोंट इवन वेट फॉर यू. यार ये हमेशा ही लेट आती है, चलो अपन चलते हैं.
ऐसा होता होगा बहुत बार आप लोगों के साथ कि नहीं? You know, if we habitually get late, or if we get into the habit of not keeping our promises, our friends, our parents, our teachers, they all stop believing you, isn't it? So, please, be honest to yourself and keep up to your word. These are the things which you should note down and understand. ये सेल्फ अवेयर क्या होता है? केवल एक टर्म पढ़ लेने से नहीं होगा, ये आपको डेली प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा. Make more powerful. You know, so you'll have to identify your belief system and stick to it. Is it possible to change your destiny? Is it possible to change your destiny? Yes, sir. Come on, louder words. Yes, sir. Hungry? So, अगर आपको कुछ अचीव करना है, अपना एम बनाना है, तो सबसे पहले शुरू में सर ने भी बताया था कि आपका एम, आपका गोल आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए. और उस गोल को पाने के लिए आपको किस रास्ते से जाना है, that path has to be carved, and you are here probably to achieve that. You all are here not by chance. By chance आ गए क्या बयानी कॉलेज में? No, you've made a very clear-cut choice, and that is the reason you are here. You have big future plans. That is why you are here. So your goal setting is must, and to follow up that goal, you have to carve a path for yourself. And you know, to empower yourself, you don't have to be, as I told you, बहुत दिखावा करने की जरूरत नहीं है. Simple, just be simple. We hear a lot of, you know, धार्मिक गुरु और इनको हम सुनते हैं कितने simple. रवि शंकर जी, he is so simple. When you hear him, लेकिन वो कितना impact डालते हैं सबके ऊपर. इसलिए आपको अच्छा दिखाने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आडंबर करने की जरूरत नहीं है. You have to be just simple and be yourself. And first of all, to love others, you have to love yourself. And if you love yourself, you can really empower yourself. अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, अपने आप से ही आप प्यार नहीं करते हैं, तो दूसरे आपको कैसे प्यार करेंगे? When you look at yourself in the mirror, you should say, yes, I'm looking really great today. Isn't it? And all these emotions, they are what? Controlled by the heart. But in emotional intelligence, it is emotions plus intelligence. So you have to use your brains to understand, to identify the emotions and use it at the right way to probably, you know, have a good conversation with your friends or to diffuse some conflict if it is there. So to identify and to understand your emotions. Therefore in emotional intelligence, both your heart and the brain is working. अभी नसीरुद्दीन वाली मूवी दिखाई थी ना सर ने. You have to get the best out of yourself. You have to use your both heart and brain at the same time. And the other aspect of emotional intelligence, how we can be so emotionally intelligent, is that we have to be socially aware. हमने अपने बारे में जाना, लेकिन हमें दूसरों के बारे में भी जानना चाहिए. You have to be empathetic. आज मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, we help her out in the daily jobs. लेकिन अगर क्लास में भी हमारी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, या अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमारी कुलीग के साथ कोई प्रॉब्लम है, then you have to be empathetic. Sympathize नहीं करना है सिर्फ. You have to put yourself in his or her shoes and then analyze. आज इसने ऐसा बोल दिया, आप नाराज हो गए. नहीं, उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला? आप उसके जगह पे जाके देखिए, हो सकता है वो सही बोल रही हो. So you have to be empathetic and you have to trust the other person. And to trust the other person, you have to trust yourself first. जब तक हम अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, दूसरा हमारे ऊपर भरोसा कभी नहीं करेगा. So I still stress on this that you must trust yourself to become trustworthy. And you have to be a very active listener. आप सोशली अवेयर कैसे हो सकते हैं? वो तभी हो सकते हैं जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुने. ऐसा नहीं कि हम अच्छे स्पीकर हैं और हम बोलते रहें और दूसरा ही सुनता रहे. No. To be socially aware, you have to. We can be a good leader, a good follower. We should love ourselves. We should trust ourselves as well as others. Because emotional intelligence is intelligence, but more than that, it's a social thing in which we can put a nice image in our society if we are emotionally intelligent. We can help others. We can recognize others as well as us.
we can follow the good path in our life, in our career. If we are psychologically good, then we can provide ourselves a very good career. And if we have a very good knowledge of something good, then it can be very nice. Okay, okay. Okay, thank you, Soni. And she maintained eye contact with the audience. There were others also who were enjoying, but वो अपने आप में मस्त थे. They did not make any, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, उनको पता भी नहीं था कि यहाँ सामने कोई बैठा है कि नहीं बैठा है. ये मेरी observation थी, maybe I am wrong, but what I liked the most about this girl's dance, Harsha's dance, was that she was smiling all through, lip sync भी कर रही थी, और वो contact पूरा बताइए. आप 1 मिनट बोलिए अपने बारे में जरा. पियानी कॉलेज में कोविड वाले बीएससी का. वेरी गुड. ओके, आज की सेशन में आपने क्या सुना? मैम एक्शन हैपनिंग देयर. ओके, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट? आप कैसे अपने ईआई को बढ़ाओगे? इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बनोगे आप? किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहले तो पॉजिटिव रहने का अपन को कोशिश करनी चाहिए. वो कैसे होगा? गलत होता ही नहीं है अपने साथ. इट इज जस्ट आवर परसेप्शन. अगर पूरी दुनिया को भी लगे कि गलत हो रहा है. So what is going to bring back a smile to your face? If you remember all the lovely things that you did together. As you're saying, she's no more. If you bring back your memories with the lovely things that you did with her, it's going to bring back smile to you. And when you